Hello everyone. Good evening. Ma'am will join us soon. Till then, please keep joining and ping your questions to the page. Ma'am will answer all the questions at the end of the session. Also, if there's any issue with the audibility, we have Ma'am with us. A very pleasant good evening, Ma'am. Hi, I good hope evening. I'm audible. Yeah, you are audible. Is my voice clear? Is my voice clear? Yes, ma'am, you're audible now. A very But good give evening, ma'am. On hi, give me 2 minutes just to adjust my camera, right? Sure, ma'am, sure, ma'am. Now, am I visible and audible both? Ma'am, you're totally and completely visible and perfectly audible. A very Okay, good evening, right, ma'am. We welcome you right, on right. board. On behalf of Girl Up Awaaz, I, Vanshika Saxena, welcome you to the live session of Girl Up Awaaz. Girl Up Awaaz is a club under the chain of Girl Up Global Campaign, which is a UN initiative. We aim to be the voice of people who have been facing discrimination in the realms of social activism. Issues like patriarchy, women empowerment, LGBTQAI plus community, and climate change. We have conducted many online as well as offline campaigns wherein we have distributed 100 plus meals, stationery items, clothes to the underprivileged people. We welcome Mrs. Sonal Goyal, an IS officer 2008 batch, has been dedicated to the services of the nation for more than a decade now. She is presently posted as Resident Commissioner, Tripura Bhavan in New Delhi, having secured All India rank 13th in the Civil Services examination. She joined Tripura Cadre, 4 years inter-cadre deputation to Haryana, and has held various significant positions since then. She has put in more than 13 years of dedicated service towards the nation. We are proud of her, ma'am. Thank you so Without much. any further ado, without any further ado, I request ma'am to please answer a few questions which are presented from our board. We'll be obliged if you could answer a few questions. Ma'am, when did you decide you were going to become an IAS officer? Is there any incident or any person in particular who inspired you? So if I talk about myself, I belong to a middle class family based in Panipat district, Haryana. And when I would actually like to communicate both in Hindi and English because some of the viewers have written कि हिंदी का भी use करना है तो I will try to mix both the languages for better communication
with the audience in the session today. तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं जैसा मेरा इंट्रोडक्शन रिस्पेक्टेड होस्ट ने दिया, मैं सोनल गोयल हूँ। 2008 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ। काडर मेरा त्रिपुरा है और 2009 से 16 तक मैंने त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी, त्रिपुरा राज्य में। उसके बाद 4 साल मेरा इंटर काडर डेप्यूटेशन का टेन्योर रहा विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और उसके बाद फिर मैंने त्रिपुरा काडर दोबारा ज्वाइन किया है और मेरा अभी का पोस्टिंग है एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा हाउस इन दिल्ली। तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा, जिस सो when did it come to me that when I should join civil services? So I would like to mention कि when I was doing my graduation, so I was doing my graduation from Shriram College of Commerce, Delhi University, and I was also doing CS along with that. At that time, doing CS along with the regular graduation was allowed. So I was doing CS with that. So it was in third year of graduation when I came across, I read about civil services, and I felt that it will give me an opportunity to do something good for the society and to do something for the nation and the country. So जब मैंने ये डिस्कस किया अपने फैमिली में, स्पेशली माय पेरेंट्स, so lot of apprehensions came into my mind. So it was like कि ये it is still the toughest examination in the country. More than 10 lakh of candidates fill the prelims form and selection is in few hundreds. Even after selection, which service you will get, and then after service, which cadre you will get, and then how will you settle your family life. And most important thing was that मेरा पहले जो orientation था वो private sector को join करने का था. So then when I discussed this, there was a continuous dialogue. Initially, a lot of apprehensions were there. But then my family supported, especially my father, and he also suggested one thing that I can try for civil services, but I should have a plan B in life. So by plan B, he meant कि अगर civil services में selection नहीं भी होता है, तो what will I be doing? Because he had firmly supported the cause of education, especially for the girl students. So taking his advice, मैंने अपना graduation complete किया 2003 में. I completed my CS in 2004, and in the same year I started my LLB from Delhi University. I appeared for LLB entrance. I started my law. I also started my part-time job as company secretary, and I also started preparing for civil services. So 2004 से 2007 तक these three things were parallel in my life. Focus was of course on civil services preparation, और उसके साथ साथ मेरा LLB का भी classes चल रहा था, and I was also doing my part-time job. So I gave my first attempt in 2006. In that I did not I wrote the mains examination, but I did not get an interview call, which is the final stage for civil services. So I did not get an interview call. Of course, I was very much demotivated, very much dejected. But then I thought that next attempt जो मुझे देना है, it should be the best attempt for me. और मुझे ऐसा करना है कि मुझे लाइफ में बाद में रिपेंटेंस कोई नहीं होना चाहिए. So taking this thought in my mind, I gave this commitment to my own self. I started my civil services preparation. Oh, sorry, again for the attempt in 2007. I gave the examination, and with my hard work, with the support of my family, parents, and with the blessings of Almighty, I cleared this examination. 2008 में final result आया, and I got All India rank 13th, and I got Tripura cadre. So this is how I shifted from say private sector profile to the job of an administrative officer, and it was not easy to qualify to be in service. And then after being in service, it has been even more challenging, and it has given me lot of experiences, lot of learnings. Yes, ma'am. Right. Ma'am, your whole journey is such a good kickstart to this whole live session of ours. Thank you so much for this inspirational story and journey of yours. Ma'am, upcoming question of mine is, as a woman, how did you overcome the societal challenges and take on the journey to become an IAS officer? So I think whether it is a male officer or a female officer, becoming an IAS officer is equally difficult.
बट येस वी कैन डेफिनेटली से कि फॉर फीमेल्स पर से इंडिया में कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, in terms of providing them equality or gender parity. There are some parts Mm-hmm. country still we may not be seeing that kind of gender disparity in the urban areas, but especially in the rural areas it is still there. So जब मैं अपनी अगर बात करूं, जब मैंने 2003-4 में सोचा, so it is like way back now, almost close to 2 decades now. We are in 22. सो 17-18 साल अच्छा। पहले जब मैंने भी सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो इमिजिएटली जो सपोर्ट है वो बहुत फोर्थकमिंग नहीं था। बट Mm-hmm. जो मेरे अंदर जो एक जुनून मैं कह सकती हूँ, मेरे अंदर एक पैशन था जो कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। और मेरी फैमिली में किसी ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो आई आई एक्चुअली थॉट कि मुझे एक बार तो करना है। तो व्हेन यू थॉट अबाउट सिविल सर्विसेज, आई थॉट अबाउट सिविल सर्विसेज, उसके बारे में उसकी तैयारी करना, और फिर तैयारी के बाद क्वालिफाई करना, और उसके बाद में नौकरी में, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट qualifying for civil services is comparatively easier, but your performance after selection, आपको अलग अलग तरीके का प्रोफाइल्स दिया जाएगा। एंड आज भी फ्रैंकली, इवन दो वी आर seeing so many chief secretaries in the states being women officers, secretaries to government of India being women officers, but there are some inherent biases in the system, in the sense कि अभी भी हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोफाइल्स, ऐसी पोजीशंस हैं जो कि प्रेफरेबली दे वुड लाइक to be manned by the male officers. I am not saying कि they are very deep rooted, but they are still there. And one more important thing is that there is always a kind of an apprehension, a kind of एक डाउट रहता है अक्रॉस द विमेन ऑफिसर्स की, विमेन ऑफिसर्स की कैपेबिलिटी को लेके। सो विमेन ऑफिसर्स नीड टू keep proving their commitment, keep proving their credibility, और उनका जो determination है, so balancing their personal and professional life, that is very much challenging for women officers, and they have to in fact take Yeah. all this in their strides and keep moving forward. And I'm very proud to see now the way women officers are not only in the IES but also in the other services like IPS, the revenue service, Indian audit and accounts, and all such kind of services. They are doing lot of good work, and they are manning very important profiles and positions in the country. Yes, ma'am. Ma'am, we are so proud of you. Thank you so much. Moving forward towards the third question. How did you manage to keep up with the consistency and motivation during your UPSC preparation? फ्रेंड्स, मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी, चाहे सिविल सर्विसेज हो या कोई और भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो जो भी आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इन सभी में आपको चैलेंज, आपको जो if we say, you will definitely be facing some or the other kind of difficulty, और बहुत easy कुछ भी नहीं है। Even securing good marks in graduation is not good. If you are pursuing any sport, so excelling in the sport at the district or state or the national level, even that is not easy. So when we are talking about pursuing your passion, so I had always tried to follow माई ओन इंस्टिंक्ट, इन द सेंस कि मैंने 4 P's हमेशा फॉलो करने की कोशिश की। उनको मैं एक एक्रोनिम बोलती हूँ: पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। सो दीज 4 P's कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, और उस जुनून को पाने के, उस लक्ष्य को पाने के लिए पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सब्र, और अगर एक बार में ना मिले तो परसिवरेंस। परसिवरेंस क्यों जरूरी है कि आपको अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो आपको रिपीटेडली अपना एफर्ट करना चाहिए। और पॉजिटिव आउटलुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहना है। तो ये मैंने लाइफ में उस टाइम पे ही नहीं, आज भी मैं इसको फॉलो करती हूँ। और मेहनत हम जो भी करें, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो आप फोकस से अपने एफर्ट्स कर रहे हो, दे शुड बी इन राइट डायरेक्शन। आई हैव सीन कैंडिडेट स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स,
14-15 घंटे पढ़ते हैं, बट समहाउ दे आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज कि कब क्या पढ़ना है. सो 3-4 चीजें यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो आपको जो अपना सिलेबस है वो आपको पहले पढ़ना है, एटलीस्ट द टॉपिक्स, सो दैट यू शुड बी एबल टू डिवाइड द टाइम अवेलेबल. सो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का फॉर्म भर के आपको एग्जाम देना है, तो आप अगर 12 या 14 महीने हैं, तो आप इनिशियली कुछ मंथ्स जो हैं वो प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी के लिए यूज कर सकते Yes, हैं. ma'am. देन यू कैन कम टू द मेंस प्रिपरेशन एंड देन टूवर्ड्स प्रीलिम्स. लास्ट के जो 2 महीने हैं प्रीलिम्स से पहले, उस पे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें. तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट, योर फोकस स्टडी एंड योर डिटर्मिनेशन, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो ऑप्टिमिज्म रहने के लिए, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, अगर आपकी कोई हॉबी हो, तो उनको परस्यू कीजिए. मेक योर सेल्फ रिलैक्स्ड. और 100% आप कभी भी कवर नहीं कर पाओगे बिकॉज द सिलेबस इज सो सो वास्ट, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि ये वाले चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पढ़ना है, और एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू शुड बी एबल टू express at least something on that topic. That is also, I think, very important. Ma'am, I must say this way and this method of studying will help all the UPSC aspirants if anyone is present in our viewers. Thank you so much for this, ma'am. Ma'am, moving forward, we have the fourth question. It says, what changes did you notice in your life after this achievement? आई थिंक सबसे पहला तो चेंज यही है कि जो लोग पहले डाउट करते हैं आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर, तो जो रिलेटिव्स या आपके उन लोग डाउट करते हैं कि जैसे मेरे केस में आई रिमेम्बर कि फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तो आई बिकेम वेरी सेल्फिश विथ माई टाइम. तो सेल्फिश इन द सेंस कि मैं फैमिली फंक्शंस, रिलेटिव्स के यहाँ जाना, वेडिंग्स अटेंड करना, मैंने लगभग 3 साल मैंने सब कुछ अवॉइड किया. तो पीपल यूज टू से टू माई पेरेंट्स कि ये अपनी बेटियों को पता नहीं क्या करेंगे, आई हैव क्या बनाएंगे. आई हैव एन एल्डर सिस्टर हु वाज डूइंग सीए एट दैट टाइम. तो मेरे फादर बोलते थे कि बेटियों को पढ़ाना, उनको एजुकेशन का गिफ्ट देना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, उसके आगे ये जो भी करें. तो जब सिलेक्शन हुआ, तो यही लोगों ने फिर मेरे फादर को, मेरे पेरेंट्स को फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया. और तब उनके वर्ड्स ये थे कि हाँ, हमें तो पता ही था कि बिटिया करके दिखाएगी, वो बहुत होनहार है शुरू से ही. तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि द वे सोसाइटी परसीव्स यू, दैट चेंजेस. एंड हालांकि हमें उन सब चीज़ों से, मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो सिविल सर्विसेज में जो मैंने एंट्री करी, जो मैंने इसको चूज किया, आई वॉज अदरवाइज ऑल्सो क्वाइट अकम्प्लिश्ड इन माई अदर प्रोफेशनल करियर. SCS LLB अगर मैं लेती तो आई थिंक मैं उसमें भी अच्छा करती, बट इसमें मैंने सिर्फ इसीलिए लिया कि मुझे देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, कुछ मेरे मन में था कि मैं करूं. तो जब मैंने एंटर किया, सो सिंस यू आर आस्किंग अबाउट द चेंजेस, सो मेरा सिलेक्शन के बाद मेरा काडा त्रिपुरा मिला. और मैं त्रिपुरा, इनिशियली बहुत सारी रिजर्वेशंस आई, क्योंकि मैं कभी हरियाणा, दिल्ली से बाहर कभी मैंने एजुकेशन के लिए कभी नहीं गई. लवासना जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो मेरे लिए लाइफ में फर्स्ट हॉस्टल था. Yes, ma'am. तो मेरे को जब त्रिपुरा काटा, Mm-hmm. थोड़ी रिजर्वेशंस थी, बट Mm-hmm. when I joined the service, I got so much of support, respect, और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला. And I would say that I have changed a lot as an individual. I have changed a lot. And ये जो लगभग 14 साल अब मेरे हो गए सर्विस में, I have faced so many situations. I have worked in 2 states and now I'm working in Delhi. सो त्रिपुरा, हरियाणा और दिल्ली में काम करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत वेरिड है. एंड आई थिंक it has made me more balanced, it has made me more mature and more empathetic, more compassionate, and also it has helped me in developing my own leadership skills in my own personality. So मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो हैं सिलेक्शन के बाद हुई हैं, और सर्विस में रहते रहते सब एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया है, बहुत कुछ सीखा है. Truly inspiring, ma'am. Truly inspiring. So, ma'am, next question of mine is, do you think as a woman, are expected to give
more importance to your personal life than your career? See, if we talk about personal or family life and the career, ये दोनों के लिए ही equally important है for a male and a female. ये बात जरूर है that there are some responsibilities which are given to a woman, which are given to a female by nature. For example, bearing a child, giving birth to a baby, and usko initially few months and then 1 year, 2 year, you have to feed the baby, take care of the child. So ये जो responsibilities हैं, ये by nature, by the law of reproduction, ये हमको दिया गया है. But that does not mean कि ये हमें वीक बनाता है. In fact, they all these things make women more stronger. And I would not say कि हमें personal True, life को ma'am. time देना है. It is in fact the act of balance. It is the act of balance which matters, and it is ultimately both your personal and professional life which you need to take care of. कुछ इंस्टांसेस ऐसे होंगे आपके करियर में जब आपको आपके एरिया में कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई इशू हो गया, कोई कम्युनल राइट्स हो गए, या कोई वीवीआईपी ड्यूटी है, या आपको इलेक्शंस कंडक्ट करानी है. तो ये जो इंस्टांसेस होंगे इसमें आपको टाइम अपने ऑफिस को, अपने पोस्टिंग जहाँ पे है वहां ज्यादा देना ही पड़ेगा. देयर मे बी सम इंस्टांसेस, फॉर एग्जांपल इफ somebody in your family needs your care, somebody is sick, या उनको आपकी मदद की जरूरत है, और यू आर हैविंग अ चाइल्ड हु नीड्स द मदर. So in that case, you will definitely need to give some more time to your family. So I think it is the balance, and in this, it is also important that the family members, the immediate family members of the lady officers, they also need to understand the limitations and the challenges in which she is working, and they also should Mhm. support the lady officer. ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस ऑफिसर को उसका फैमिली का सपोर्ट मिले. आई एम ब्लेस्ड, आई मस्ट से दैट आई हैव गॉट सपोर्ट ऑफ माय husband, my both kids. I have two kids. My daughter is 8.5 year old, and my son is 2 year old. I have got their support. They are very understanding, and my parents, they have been, despite their ailments, they have been a support for me always. सो आई थिंक ये जो व्यूअर्स, जो ऑडियंस में जो आज सुन भी रहे हैं इस सेशन को, तो अगर आपकी फैमिली में भी यू हैव योर सिस्टर, योर मदर, योर वाइफ हु वांट्स टू डू बिग इन लाइफ, हु हैज सम ड्रीम्स, जो कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए. जरूरी नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, वो कुछ भी अपना करना चाहती हैं. वी ऑल शुड सपोर्ट द women at whatever levels we can. Ma'am, one can definitely take an inspiration from you how to balance life. So I hope viewers must have got this point very clear. Ma'am, next question is, did becoming a mother bring a change in your work life? What are the lessons you have learned that you will teach your children in case they choose the same field? So first of all, I would like to say कि I would never force anything on my kids, in the sense कि उनको जो भी choose करना है. For example, just to share, my daughter, she loves drawing and painting, and she is doing it since she was in fact 2 year old. And my son, even if he's 2 year old, 2.5 year old, but he likes music and dance. So both the kids, they would be independent of us, independent in taking decisions. Of course we would be guiding. तो ऐसा बिल्कुल भी उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनको सिविल सर्विसेज में ही जाना है. They can do anything which they want. Mhm. और दूसरी बात ये है कि becoming a mother, of course, has, as I would mention, it has made me more strong. And it has, my son actually just came in. I'm sorry. So I it can has hear. made me more stronger, and I would say कि it has made me uh, stronger emotionally, because अब मैं बहुत कुछ empathize कर पाती हूँ with the other people. I am able to empathize more, have more compassion, I would say, and deal things in a different way. I think so. That is very important. That has changed in my personality as a mother. And of course, एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने पहले भी बोला कि यू फेस सो मेनी सिचुएशंस, इतने सारे
आपके लर्निंग्स रहते हैं, यू गेट एन नंबर ऑफ पोस्टिंग्स. त्रिपुरा में भी मेरी बहुत सारी पोस्टिंग्स रही. देन हरियाणा ऑल्सो आई वॉज पोस्टेड in 4-5 positions. So all such things, you will definitely learn something new, and this is the beauty and the diversity of civil services. So I think if I talk about my children, क्योंकि आपने पूछा कि what are the lessons जो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे, I would only request them and try and inculcate in them कि they all should become good human beings. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चाहे वो कोई भी करियर पाथ True, ma'am. चूज करे, दे शुड हैव फीलिंग्स फॉर अदर्स, दे शुड बी कंपैशनेट, दे शुड बी एम्पैथेटिक, दे शुड बी काइंड, दे शुड बी ग्रेटफुल. जो उनको मिला है उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना है भगवान का. दे शुड deem that it is a blessing which they are receiving and help each other. I think that is most important जो मैं अपने बच्चों को एक as part of the moral values, as part of our education system, एक दूसरे की मदद करनी है, दूसरों से एम्पैथी रखना है, ये एंड एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक जो देश के लिए कुछ कर रहा हो, मैं यही वैल्यूज अपने बच्चों को देना चाहूंगी. Ma'am, beside being a wonderful IS officer, you are a wonderful mother as well. Thank you. So, ma'am, next question is that as an IS officer, were you transferred to any unfamiliar place? How was the experience? So as an officer, actually हमारी जनरली अगर आपको होम कैडर नहीं मिलता है तो आपकी पोस्टिंग्स हमेशा अनफेमिलियर प्लेस पे ही होगी. सो फॉर एग्जांपल आई गॉट त्रिपुरा कैडर, जैसे मैंने बताया, और मैं त्रिपुरा अपने सर्विस में सिविल सर्विसेज में आने से पहले मैंने कभी भी विजिट नहीं किया था वो स्टेट. तो जब मैं वहां गई तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, अ स्मॉल स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. त्रिपुरा में 3 साइड से बांग्लादेश का बॉर्डर है, एंड Bengali and tribal population, both populations are living in harmony in the state. We have panchayat areas, we have areas which are governed by the autonomous district council, ADC areas, जो village committees बोलते हैं, under the 6th schedule. So people are very warm, people are very affectionate. और इनिशियली मेरे को कुछ चैलेंजेस आए बिकॉज देयर वाज डिफरेंस इन द फूड हैबिट, difference in the culture, difference in the custom, difference in the language. Bengali is spoken primarily there. Of course, people speak the tribal dialect and Hindi also, English also. But Bengali एक majority level पे एक language बोली जाती है. तो मैंने वहाँ जाके बंगाली सीखी. I learned both written and spoken Bengali. I adapted to their food habits and culturally भी उनके साथ में मैंने मिक्स होने का कोशिश किया. एंड आई गॉट लॉट ऑफ सपोर्ट. देयर वर फ्यू, आई रिमेम्बर दैट देयर वर फ्यू एरियाज इन माय सब डिवीजन. जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी एज एसडीएम, इट वाज वे बैक इन 2010. तो जिसमें I was in Ambassa and there were few village committees in the subdivision जिसमें after a point the motorable roads were not there. So I'm talking way back in 2010. तो we used to have a trek to those places, 10 to 12 to 15 किलोमीटर वहाँ पे वन साइड जाना, और फिर वहाँ से हमको टीम को पूरी टीम को जाना. एंड देन वी वुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स. द टीम द ऑफिशियल्स ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स वो वहाँ पे रहते थे पूरा दिन, एंड देन वी वुड कम बैक. सो it helped me a lot in connecting with the people and also know the problems of those areas. और इन कोशिशों से हमने ये प्रयास किया कि वहाँ पे जो बेसिक सर्विसेज हैं लाइक द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, द आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल सब सेंटर, वो सब अच्छे से चले. तो ये हमारा जो सर्विस का एक जो चैलेंज है वही अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है. So the challenge was that the area was remote, but then it also gave us an opportunity that if we believed in our team अगर साथ में मिलके काम करे तो वो बहुत कुछ कर सकती है और ऐसे चेंजेस ला सकती है जो कि सस्टेनेबल हैं. और यही बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो भी प्रयास हो एडमिनिस्ट्रेशन में, एक ये भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि हमारे ट्रांसफर्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं. हमें ये नहीं पता कि हम इस प्रोफाइल में कितना टाइम रहेंगे.
तो मैंने हमेशा ये कोशिश किया कि मेरी जहां भी पोस्टिंग रही कि उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, सो दैट इवन इफ आई एम ट्रांसफर्ड इट वुड बी देयर, एंड द इनकमिंग ऑफिसर, या एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तैयार किया जाए जिसमें वो जो इवन जूनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो उसको टेक फॉरवर्ड करें। सो आई थिंक ये सब चीजें इन सब चीजों ने मुझे हेल्प किया, और मैं काफी कुछ कर पाई। ऑफ कोर्स बहुत कुछ माइंड में होता है कि आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होती है कि आप ये सब करोगे, यू ट्राई एंड चूज योर प्रायोरिटी एरियाज। ऑफ कोर्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसीज हैं उसको तो आपको ठीक से इम्प्लीमेंट कराना ही है। बट देन अगर मैं बहुत कुछ नहीं भी कर पाई, बट of course to an extent I am satisfied that I could do a lot with the support of my team members, and of course the respect and support which I received from the people जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हमने कराने का कोशिश किया। Ma'am, I guess once Darwin said that survival of the fittest goes with your post. Yeah, definitely, definitely. We have to adapt, we have to learn, and we have to deliver. So any जैसे एक दिन अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, नेक्स्ट डे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी पोस्टिंग हमारी हो सकती है। तो एंड वी कैन नॉट से दैट Yes, ma'am. वी आर नॉट अवेयर ऑफ, वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू वर्क, देन टू डिलीवर। सो देयरफॉर आई सेड कि हर Yes, पोस्टिंग में ma'am. नया वर्क प्रोफाइल है, और वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है हर हमारे प्रोफाइल में। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for this truly inspirational answer. Next answer is that what are the some things to keep in mind as a female in the line of work for all our female aspirants? Sorry, please repeat the question. What is the? What are the some things to keep in mind as a female in this line of work for all our female aspirants? सो आई वुड से कि ऐसा कुछ स्पेशली कुछ नहीं है कि अ फीमेल शुड कीप इन माइंड। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इट इज द एक्ट ऑफ बैलेंस व्हिच मैटर्स। और अब Mm-hmm. जो पहले एक इनहेरेंट बायस था सिस्टम में, नाउ दोज prejudices are also getting diluted, and there are lot many opportunities which are being given to the female officers. सो ऐसा कुछ नहीं है आई वुड से दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग ऑफ एनी फीमेल ऑफिसर। आपको जो भी चैलेंजेस आपके सामने हैं आपको उनको स्ट्राइड में लेना है, और आपको अगर आपकी इंटेंशन जेन्युइनली ऑनेस्ट है, इफ योर इंटेंशंस आर ट्रू, इफ यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमको ये माइंड में रखना है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए हमारी आंसरेबिलिटी है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग। सो वी शुड नॉट अज्यूम कि हमने आज कुछ कर दिया उसके बाद कल हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी मौके पे जो भी फाइल में डिसाइड कर रहे हैं, कल को यू हैव टू स्टैंड अप टू दैट। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो चाहे मेल ऑफिसर हो चाहे फीमेल ऑफिसर हो उसको ध्यान में रखना है, और अपने राइट इंटेंशंस के साथ आई थिंक आगे बढ़ते रहने में ही आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिलेगा और आपको आपकी टीम का भी सपोर्ट मिलेगा, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डिलीवर एट लीस्ट अप टू सम एक्सटेंट। Yes, ma'am. True, ma'am. Very true. So, ma'am, next question is, what is your take on the youth of our country and the direction they are taking? इंडिया का जो यूथ है, इंडियाज यूथ इज द पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री, एंड वी ऑल नो द वे दे हैव बीन डिलीवरिंग in all fields. It is not only in education. We have seen last year Olympics में, जब टोक्यो Olympics में, we have seen how Indians got 7 medals at the Olympics, and I think 19 medals at the Yes, ma'am. Paralympics games. That is the highest till now. India sent the contingent having highest number of players, and it feels very proud to see their achievements, especially for the female athletes। जिस तरीके से हमारे इनिशियली तीन जो मेडल्स थे, लवलीना बोरगोहेन एंड मीराबाई चानू एंड पीवी सिंधु, तीनों गर्ल्स ने लाके दिखाया, और उसके बाद ऑफ कोर्स आवर मेंस टीम
one medal in hockey, and then we had wrestlers Bajrang Punia and Ravi Dhaia, and of course we got gold from Neeraj Chopra. So हमारे जो यूथ ने जो दिखाया, शक्ति दिखाया अपना, उनका जो इतना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन था, आई थिंक दैट इज commendable. And not only in sports or education, it is science and technology, it is innovation, it is becoming entrepreneurs. Youth are leading all across the country, and especially during COVID-19. I would mention कि 2020 से it has been like almost now 2 years कि nation and the entire world is reeling under the pandemic COVID-19. एंड वी हैव सीन कि किस तरीके से कोविड-19 में इनोवेशंस अक्रॉस द कंट्री हमारे यूथ लेके आया सामने. आई कैन रिमेम्बर फ्यू एग्जांपल्स. आई वाज रीडिंग समवेयर that Kerala में one group of young people they innovated this mask vending machine. So the Kerala Yes, ma'am. mask vending machine, and then it got support under the Kerala Startup Mission. Students of IIT Bombay, they developed low cost mechanical ventilators. So the mechanical ventilators, then they also got support from the government under, I think, the Atal Innovation Mission. So ये जो examples मैंने इसलिए बताया कि youth have been shouldering the responsibility for nation building, and come what may, कोई भी crisis आते हैं हमारी कंट्री में, यूथ सबसे पहले आगे खड़ा होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वी हैव दिस पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो अगर हम यूथ की एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करें, इट कैन एक्चुअली डू वंडर्स, एंड वी कैन रिक्रिएट एंड वी कैन री राइट द ग्रोथ स्टोरी फॉर आवर नेशन. सो मेरी रिक्वेस्ट सभी यूथ से यही है कि अपने हौसलों पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए. Thank you so much, ma'am. We, being the youth of this country, will take definitely an inspiration from you. Thank you. So, ma'am, the next question for you is, what would you like to say to the people who could not clear their civil services examination recently? So I would say कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर देना, उसमें क्लियर करना, एंड इफ यू क्वालिफाई इट इज वेरी गुड, बट इफ यू डोंट क्वालिफाई इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वालिफाई अगर आप नहीं भी होते हैं, तो स्टिल देयर वुड बी मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. लाइफ विल गिव यू मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज. आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं खोना है. इवन इफ यू डोंट clear, you don't need to lose your self confidence or doubt your own capabilities. It is important to have positive belief, and there would be something alternative which would be coming. तो जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोली कि प्लान भी आपका लाइफ में होना चाहिए. अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर भी रहे हो, तो आपके माइंड में ये तब भी होना चाहिए कि अगर मैंने 2 साल इसमें इन्वेस्ट किए, 3 साल इन्वेस्ट किए, और अगर मेरा इसमें सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे. ये आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड when you are preparing for examination, this should always be in your mind. एंड टेक इट फ्रॉम मी फ्रेंड्स, अगर आपका क्लियर नहीं भी होता है, आई अंडरस्टैंड दैट लाइफ वुड नॉट बी ईजी, बिकॉज आप कुछ और सोचते हैं और होता कुछ अगर और है. लाइफ इज नॉट ईजी, बट देन वी ऑल्सो नो कि सिचुएशन, जो टफ सिचुएशंस हैं, दे मेक यू स्ट्रोंगर, राइट. सो टफ सिचुएशंस मेक यू स्ट्रोंगर, मेक यू बोल्ड, एंड मेक यू मोर इक्विप्ड फॉर फेसिंग द चैलेंजेस इन लाइफ. तो कुछ और आपकी लाइफ में अच्छा जरूर आएगा. And keep moving forward. Do not lose hope. Something good will definitely come in your way. Right. Ma'am, after this, each and every youth and each and every aspirant will be so much moved and inspired. Ma'am, we have few questions from the viewers, as we are done with the questions from both. We have few questions from the viewers. Ma'am, one of our viewers has asked a question. Ma'am, what is the right time to start writing this practice? Right time to start civil services preparation? Yes, ma'am. Okay. So friends, civil services preparation में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि do not start too early. So for example, कुछ students मेरे से पूछते हैं कि अभी हम स्कूल में हैं,
और हम सिविल्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम ये एक माइंड में बात जरूर रखें कि ये जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है, इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। सो मिनिमम 2 years तो आपको चाहिए, इन द सेंस कि 1 साल आपका जो प्रीलिम्स है उससे 1 साल पहले आपको डेडिकेटेड स्टडी करना है, एंड 1 year इज कंज्यूम्ड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर एग्जामिनेशन। सो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये साइकिल ही ऑलमोस्ट 1 year ले लेता है। तो अज्यूमिंग दिस थिंग इन माइंड, आई थिंक यू शुड नॉट स्टार्ट टू अर्ली। सो स्कूल में अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन एट द मैक्सिमम रीड सम, जीएस के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन डेवलप योर नैक फॉर करंट अफेयर्स, जीके, इतना कर सकते हैं। बट डू नॉट बी टू मच इन्वॉल्व व्हेन यू आर इन स्कूल, क्योंकि स्कूल में फिर आपको उसके बाद में ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रहे हो, उसके लिए यू विल नीड गुड मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट, तो उस पे फोकस रखना है। एंड अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी शुरू कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के साथ भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्या सिर्फ सिविल्स का ही एग्जाम देना है, या कुछ आप ऑल्टरनेटिव भी सोच रहे हो इन द टर्म्स ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी प्लान, या कोई आप जॉब लोगे, तो इन सब को बैलेंस करके चलना है। और अगर आप ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर रहे हो तो भी मैं बोलूंगी कि आप को एक बेसिक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो अच्छा लाना होगा, सो दैट इवन इफ यू डू समथिंग इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इवन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, तो यू शुड हैव अ डिसेंट स्कोर टू गेट एडमिशन इन दैट कोर्स। सो ये सब जो चीजें हैं ये माइंड में रखनी है। एंड समटाइम्स आई हैव सीन, जैसे मेरा भी केस था कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करी, और ग्रेजुएशन के बाद हम्म। एक हायर एजुकेशन का मैं एलएलबी भी कर रही थी, और साथ ही साथ मेरा जॉब भी चल रहा था। तो अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आपके 24 घंटे में आप कितना टाइम सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दे रहे हो, कितना टाइम आप अपने कोर्स की पढ़ाई के लिए दे रहे हो, और अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो कितना टाइम वहां पे है। तो ये सब चीजें हैं, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको जरूर पढ़ें। यू विल गेट टू नो कि ये एग्जामिनेशन क्या पूछ रहा है, क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें पूछी जा रही है। सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रीड बिफोर you actually decide for civil services examination. Thank you, ma'am. I hope the viewer must have got her answer. Ma'am, there's one more question. The question from the viewer is that which stream is the best for UPSC, BA Honors or a regular program? फ्रेंड्स, कुछ भी बेस्ट या कुछ भी वर्स्ट नहीं होता सिविल सर्विसेज में। देयर इज नथिंग सो कॉल्ड बेस्ट और नथिंग सो कॉल्ड वर्स्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हर स्ट्रीम से हर साल वी आर सीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वी आर सीइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीबडी, इवन केमिस्ट्री ऑनर्स से भी स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग सिविल सर्विसेज। सो ऐसा कुछ भी बेस्ट नहीं है। बेस्ट वही है जिसमें आपको कंफर्ट है, जो आप कोर्स कर रहे हो उसको आप किस तरीके से उसमें पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप वही जो आप सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो अगर वही आपको ऑप्शनल रखना है, इफ दैट इज द सेम ऑप्शनल विच यू वांट टू टेक इन योर सिविल सर्विसेज, क्योंकि पहले तो प्री और मेंस दोनों में ऑप्शनल था, नाउ दे हैव डिसकंटिन्यूड द ऑप्शनल फॉर प्रीलिम्स, मेंस में सिर्फ एक ऑप्शनल रखना होता है। तो वो जो ऑप्शनल है आपका, वो आपको एक बार देखना है कि आप क्या रख रहे हो, और उसके हिसाब से भी यू कैन चूज योर सब्जेक्ट। बट आई वुड मेंशन हेयर कि बहुत ज्यादा आपका सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसमें आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे व्हेन यू आर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो वो आप देख लीजिए कि आपको हिस्ट्री में कोई ऑनर सब्जेक्ट लेना है, आपको आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज में कोई ऑनर सब्जेक्ट लेना है, या कोई दूसरा कोर्स करना है। सो दैट इज टोटली अप टू यू, बट आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग सो कॉल्ड बेस्ट और वर्स्ट as far as the civil services examination is concerned. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, actually, we have three or four relevant questions which you have covered in your answers. So Right, I that's think it from the viewers.
एंड आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर व्यूअर्स को अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में और भी जानकारी डिटेल में चाहिए, सो दे कैन एक्चुअली लुक एट माय यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ सोनल गोयल आईएएस। उसमें मेरे जितने भी मेरे सेशंस के वीडियोस रहते हैं, मैं अपने आप लाइव सेशंस भी लेती हूँ, फेसबुक एंड लाइव सेशंस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लाइव सेशंस ऑन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो वहां जाके भी आप चैनल पे जाके भी आप वीडियोस को देख सकते हो, या मेरा फेसबुक पेज है सोनल गोयल आईएएस पेज, वहां जाके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो दे आर क्वाइट, मैं कोशिश करती हूँ कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिविल सर्विसेज के बारे में अपने सेशंस में देना, तो वहां भी जाके एस्पिरेंट्स उन वीडियोस को देख सकते हैं, एंड आई थिंक थोड़ी शायद मदद उनसे मिल जाए उनको। I hope everyone has noted the details of the ma'am, which ma'am conveyed of her different channels. So it might be very helpful for all the UPSC participants. So thank you so much, ma'am, for taking up all the questions. It was such a fruitful session for us, our viewers. The Girl of Awas team is truly overwhelmed to have you over a live session. You have made it truly, truly inspiring थैंक यू for सो us. मच। मेरा लास्ट एक मैसेज है यूथ को, कि आप सब हमारे देश की शक्ति हो, और राष्ट्र प्रेम, देश के लिए कुछ कर जाने का जो जुनून है, ये अपने अंदर से हमको खोने नहीं देना है। और आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी करियर चूज करो, चाहे आप बिजनेस में जाओ, चाहे आप कोई कंपनी ज्वाइन करो, चाहे आप सिविल सर्विसेज में आओ, या एजुकेशन की फील्ड में जाओ, या स्पोर्ट्स में जाओ, हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर वो क्षमता है, वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द कैपेसिटीज टू क्रिएट चेंज इन द सिस्टम। एंड आपकी छोटी सी कोई मदद अगर आप दूसरों के लिए कर पाए, वो जरूर हमें कोशिश करनी चाहिए। वॉट एवर, even small effort at your level, you should be taking it always for the benefit of the people around you। एंड हम सोसाइटी में एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे की मदद करें, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ें। और लास्ट में यूथ के लिए एक मैसेज, जो आई एम श्योर कि सबने सुना होगा, बट फिर भी एक कुपलेट है हिंदी का जो मुझे हमेशा ध्यान में रहता है, और मैं वो यहाँ दोहराना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो क्षमता है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। नो योर वीकनेसेस, नो योर स्ट्रेंथ्स वेल, इम्प्रोवाइज योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है, और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने ऊपर बिलीफ रखते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए आप लाइफ में आगे बढ़िए। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। So everything is possible provided you give your 100% genuine efforts, and may you all stay healthy. It is also very important to stay healthy physically and mentally. हमने कोविड में भी देखा, we so much pain we all have suffered. So physically और mentally भी fit रहना, healthy रहना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और एक दूसरे की मदद करते रहिए। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 26 जनवरी अभी हमारा रिपब्लिक डे हम सोन सेलिब्रेट करने वाले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो कि डिमार्केट कर रहा है कि हमारी इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उसको भी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम प्राउड हो कि हम भारतीय हैं, और हम अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देते रहें। यही मेरी तरफ से आप सबको रिक्वेस्ट है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am. Have a very, very nice day. And thank you so much for your truly inspirational word. Today, the youth must be proud to have an IAS officer like you, a civil servant like you, serving our country, making it a better world. Thank you so much, ma'am. थैंक यू Have सो an amazing year ahead. And congratulations for 75 years of independence to each and every viewer, to ma'am, and every citizen of India. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। जय हिंद। Jai Hind, ma'am.